Yeah. Hello, everyone. I know that your exams are going on, guys. So, in preparation for your upcoming ICSE exam, I know that you guys have limited time frame before your physics exam. So, given the constraint of your time, I am preparing and I am recording, guys, my first lecture of formula list, which will be helpful for you guys so that it becomes easy for you to go to practice all the other topics, and you won't lose any marks in these formulas or basically in the numericals. Okay, so if you read this, if you learn this, whatever formula list or the shortcuts that I will give you, 100% you won't lose any marks in basic formulas question, in MCQs, in one liners, all in the numericals, the basic numericals. The tougher ones, usually you have to use more brains, but in basic concepts you won't lose any marks. Okay, na? So I will be making today, what I will be planning is to do all the three first unit, that is force, work, power, energy and machines, with shortcuts, guys, direct shortcuts. Usually they are not given in textbook, they will give in formula basis, topic basis, in different ways. But what I will be doing, I'll give you some shortcuts that will make your formulas very easy for you, because I have seen students losing marks, majority of the marks, because of the formulas. They're writing different formulas, different units. So I will make the formula list, as well as I will help you in conversion list for these three chapters. Okay, so let us start, guys. So फॉर्मूला लिस्ट, दैट इज पढ़ोगे तो बढ़ोगे, ऑब्वियसली गाइस, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, नहीं तो डूबोगे. मुझे डुबाना नहीं है, आई डोंट वांट यू गाइस टू डूबोफाई. लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, गाइस. ठीक है, द फर्स्ट चैप्टर इज फोर्स. ठीक है, फोर्स, comparatively from all the chapters, guys, you will find very less formulas for force. Although the numericals are difficult, but at least you should know the basic formulas. The first formula is moment of force. You also write this moment of force as MOF. You can write this. The formula is moment of force is force into perpendicular distance. Force into perpendicular distance, from the axis of rotation, point of application and axis of rotation. For example, fixed, this is a force applying on this point F, point A, है ना, ये point take as point A. ठीक है, I am saying it is fixed at this point O. So if you will see, guys, this is the distance D from the fixed point. This is fixed point, this is force applied. So F into this distance is called as moment of force, MOF. Easy. Number 2, moment of couple. We have two formulas for moment of couple. We can do as a F into D1 plus F into D2, or usually we write this formula, that is either force into couple arm. What is this? Simple, guys. Okay, suppose there's one scale. Okay, it is fixed at this point O. One force is applied over here, F. Second force is applied over here, F. Both forces are same magnitude. This is 10 Newton. Suppose this is also 10 Newton. Distance, suppose this is D1 and this is D2. As both are in same direction, clockwise, both the moment will be at moment. If I talk about this force till this point, the formula for moment will be F into D1. And for this F into D2, we will add, because both are in same direction. Or else we will write this formula as either force, any one force into couple arm. What is couple arm? The whole distance D. This is called as couple arm. Okay, so you can use this formula. Third, guys, third,
And second last formula, that is using principle of moment, guys. POM. What is principle of moment? I usually teach like this. I usually teach like formula for principle of moment is SAM equal to scam. SAM equal to scam. What is SAM? SAM is sum of anti-clockwise moment and it is sum of clockwise moment. Hope you guys know what is anti-clockwise moment and clockwise moment. है ना? So we will use when body is in equilibrium. Body is in equilibrium. Balance state में होता है. Then we will use this formula. SAM equal to scam, that is sum of anti-clockwise movement equal to sum of clockwise movement. है ना? This is formula for force, guys. Only these three formulas. Sometimes they may ask you force also. Yeah, wait. That is mg. You should know this. This is basics that you learn. W equal to mg. So mainly these are the three formulas for chapter force. Second chapter, guys. Now we'll move on to second chapter, that is work, power and energy. You will find a lot of formulas in this chapter, guys. Okay, so we will make it easier. Okay, first, work is Fs cos theta. Okay, you guys know what is W work, F force, S distance, theta angle between F and S. ठीक है, so you will see theta तीन टाइप का होता है guys. Theta is the angle can be 0, can be 90 and can be 180. Usually they give you these three. ठीक है, so if it is 0, formula is F into S. This is maximum work. If it is 90, angle between force and displacement is 90, Fs, work done is 0, cos 90 is 0. Same, if force is over here, displacement over here, so work done will be minus Fs. Minus gives you the direction. Matlab magnitude is same. If it is 10 Newton, 10 joule, it is also 10 joule, but direction is opposite. Minus sign determines the direction. ठीक है ना? Because cos 0 1, cos 90 0, cos 180 minus 1. That's why minus Fs. Cos 180 is minus 1 minus Fs. So these are the three formulas you should. In exam, they will tell you find the minimum work done. When is the minimum? You know what? When is the maximum work done? When theta is 0. W equal to Fs. This is maximum. But when they will ask you minimum, most of the students, what they do, they write this formula. This is wrong. Minus Fs. Minus matlab we are not looking in number system, guys, in max. 0, 1, 2 is bigger. Then 0 say minus 1, minus 2. Minus 2 is basically smaller, minus 1 is bigger. We don't look in the minus sign. Minus is only for direction. If they will ask you when is the minimum work done, we will take this theta as 90 degree. So this is the minimum work done, that is 0. Okay, so you have to remember this formula, work done ka formula, very important. I don't want you guys to lose marks in positive, negative and 0 work done. This is what I have taught you is positive, negative and 0 work done. Okay, na? This is positive, this is negative and this is 0 work done. Okay. Number 2, work done is also equal to area under the graph, guys. What do you mean by area under the graph? Simple. Okay, force displacement graph. So the exam, they will give you force and displacement ka graph. So this is variable force, force is changing.
this is constant force, and this is also basically it is changing, suppose. So they will tell you to find work. So simple formula is area under the graph. This area, half into base into height, half into base into height will be the work done over here. Under the graph के over here, same area under the graph. I will mark this portion. So basically it is, you can say length into breadth, rectangle का, square, side square. If it is square, then side square. Rectangle, length into breadth. Trapezium. How can you solve trapezium? Two ways. Half into sum of parallel sides into height, or else you'll take this triangle, this rectangle, this triangle, तीनों को add करो, you will get the answer. ठीक है? So by this way you can find the work done by using graphs. ठीक है? Next, third formula guys. Third, they will ask you work done by gravity. Yeah, work done by gravity. Work done by gravity is nothing but mgh. है ना? Force will be mg and distance will be height. क्योंकि it is now gravity. Gravity means it's vertical motion, going up, coming down. तो vertical में basically height आता है and we take weight. ठीक है? Horizontal में usually we take f and s. Vertical में अगर gravity का बात कर रहे हैं तो it is always mgh. ठीक है? So these are the three work का basic starting formula. Now we will move on to potential energy, mgh. ठीक है? G का value, if in exam they have not given, take 9.8. If they give you 10, then take 10. Or else कभी ऐसा होता है कि you don't have time, calculation बड़ा है, तो you can take 10 and solve, no problem. But if they are not given, take 9.8. Usually they give it. Potential energy, mgh, height. जितना ज़्यादा height, उतना ज़्यादा potential energy. Third floor, fifth floor. I'm throwing something from fifth floor, so throwing the same thing from third floor. तो फिफ्थ फ्लोर पे तुम देखोगे कि पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैंने होल्ड भी किया है, चलो डोंट थ्रो, होल्ड इट, पोटेंशियल एनर्जी फिफ्थ फ्लोर पे ज्यादा होगा, थर्ड फ्लोर पे कम होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मास और हाइट पे डिपेंड होता है. ठीक है? डिपेंड्स ऑन मास एंड डिपेंड्स ऑन हाइट. व्हाट अबाउट दिस चेंज? अब कभी कभी चेंज भी बोलता है, हाइट चेंज हो गया, मैं फिफ्थ फ्लोर पे था, अब मैं थर्ड पे आ गया, पोटेंशियल एनर्जी कैसा होगा? चेंज होगा. कैसा होगा? सेम फॉर्मूला बट चेंज. h1 माइनस h2. h1 क्या है यूजुअली इसमें? कंसिडर h1 इज ग्रेटर देन h2. ठीक है? ये कब होता है? पोटेंशियल व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट. ठीक है? बट व्हेन बॉडी इज इन मोशन वी विल यूज अ फॉर्मूला दैट इज फॉर काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv स्क्वायर. ट्रक, कार, सेम वेलोसिटी, जिसका मास ज्यादा, ट्रक का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, वेलोसिटी सेम है. टू कार्स, सेम मास, बट एक स्लो जा रहा है, कम जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा उसका. ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड होता है हाफ mv स्क्वायर. चेंज हो रहा है, सिंपल. एक पॉइंट पे वी कंपेयर, वी डोंट कंपेयर, वी सीधी चेंज. पहले इनिशियली इतना था, फाइनल इतना था. सिंपल फॉर्मूला, दैट इज हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर. व्हाट इज v स्क्वायर? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है? शॉर्टकट में, शॉर्ट में नहीं, बट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. विल टेक द कॉमन आउटसाइड, यू विल गेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला. और एल्स v, डोंट टेक v1. हाँ, इनिशियल चलेगा. समटाइम्स दे टेक v1 और v2, so we can also take that. I will take that only. Let us take that. v1 v2, v1 v2, v1 is greater than v2. Important. ठीक है? So this is the actual formula you will see. ठीक है ना? ये फॉर्मूला, इसमें ये फॉर्मूला एक्चुअली आता है. सो वर्क, पोटेंशियल, काइनेटिक. वर्क का ऐसा यूनिट जूल, पोटेंशियल का भी जूल, काइनेटिक एनर्जी का भी जूल. ठीक है? सो ये पोटेंशियल हो गया. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. आई हैव सीन स्टूडेंट्स मेकिंग मिस्टेक्स इन दिस फॉर्मूला. दिस इज फिफ्थ ना, सिक्स्थ. That is a relation between momentum and kinetic energy. This is very important. Listen very carefully what I am saying. You know guys, basic momentum का formula is small p.
Momentum is mass into velocity. Any body having mass moving with velocity will have a momentum. That is, ठीक है, मास इंटू, इसमें यूनिट का बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चों का. ऐसा यूनिट विल बी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का. दैट इज मोमेंटम. ठीक है. अब मोमेंटम चेंज भी होता है गाइस धीरे धीरे. तो दे विल आस्क यू रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी. द फॉर्मूला इज P इक्वल टू √2 किलोमीटर, √2 kilometer. What do you mean by K? K is kinetic energy, M is mass. सब रूट में. एग्जाम में दे विल टेल यू टू फाइंड मोमेंटम, ये फॉर्मूला. एग्जाम में दे विल टेल यू टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी. फॉर्मूला इज P²/2m. सो मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी जब गाइस क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वी हैव टू यूज दिस टू फॉर्मूला. कभी भी डोंट यूज काइनेटिक एनर्जी में ½ mv². इफ दे हैव गिवन यू मोमेंटम, यूज दिस टू फॉर्मूलाज. मोमेंटम ढूंढना है तो ये फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी ढूंढना है तो ये फॉर्मूला. दे विल आस्क यू अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टू फॉर्मूलाज. दे विल आस्क यू द रेशियो, कंपेयर करने बोलेंगे. कंपेयर का मतलब क्या होता है? कंपेयर मतलब याद रखना गाइस, रेशियो मतलब P1/P2 निकालना है और K1/K2 निकालना है कंपेयर में. और दे विल आस्क यू चेंज. one that is compare, one is change guys. चेंज में क्या होता है? चेंज में वी टेक डेल्टा. डेल्टा मतलब चेंज, मतलब इट कैन बी P1 माइनस P2 और K1 माइनस K2, या उल्टा भी हो सकता है P2 माइनस P1 और K2 माइनस K1. तो यू हैव टू रिमेंबर दैट कंपेयर एंड चेंज में डिफरेंस होता है. तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट दे आर आस्किंग यू हैव टू सॉल्व अकॉर्डिंगली. ठीक है. तो कीप दिस इन माइंड. ये एक दिमाग में भर लो. इसमें बहुत मिस्टेक्स आते हैं. मैक्सिमम मार्क्स स्टूडेंट्स लूज इन दिस टाइप ऑफ फॉर्मूलाज. नेक्स्ट 9th स्टार मार्क. 100% I have seen students missing learning this formula. They don't remember this formula. That is work energy theorem. Work done is equal to change in kinetic energy. So I won't do in detail. I will give you in short. That is ½ mv² minus u². Mass, final velocity, initial velocity, है ना. चेंज हो रहा है बेसिकली वेलोसिटी. कुछ तो वर्क हुआ है ना. दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार मार्क है गाइस. एंड लास्ट इन दिस चैप्टर दैट इज पावर. तो पावर इज वर्क अपॉन टाइम गाइस. सेम they will ask you 100%. I will tell you, they will be asking you power का numerical, the ratio of power they will be asking you. ठीक है ना. with respect to time numericals they will ask. Power is mgh upon t. The next formula is very important, F into V, or you can write that in new 11th one. Guys, power is F into V. F is force, V is velocity, है ना. Obviously guys, see again, work का formula you guys know. work क्या है? Power is work upon time. work क्या है? F into S upon time. S upon T, distance upon time को ही वेलोसिटी बोलते हैं, या डिस्प्लेसमेंट जो भी है. F into P इधर से आता है. अगेन ये भी स्टूडेंट्स दे डोंट रिमेंबर दिस टाइप ऑफ फॉर्मूलाज, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिवाइज. ठीक है. डन. सो 11 फॉर्मूलाज फॉर वर्क, पावर एंड एनर्जी गाइस. नेक्स्ट लास्ट चैप्टर दैट इज मशीन्स. थर्ड चैप्टर. आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स losing their marks in levers, in pulleys.
numericals. Why? Because they don't know the formula. They are basically reversing the numerator and denominator while solving the numericals. So what I will do, I will make formula for machines in 3 part, and I will give you a good shortcut that will be helpful for you in machines. ठीक है? So let's see क्या होता है. Let's see तुमको हाँ, yes, let's start. Number 1, machines. First, तो first basic guys, basic क्या होता है? We will start with mechanical advantage. You guys know mechanical. It is load upon effort. Load upon effort. Easy formula, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना. नंबर 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Velocity ratio. Velocity of effort upon velocity of load. कोई चीज जब पुल्ली को खींच रहे, कितना वेलोसिटी में खींच रहे, लोड भी कितना वेलोसिटी में आएगा, वेलोसिटी रेशियो. नेक्स्ट, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ये भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन लोड है ना. डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन टाइम, टाइम टाइम कैंसिल, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, टाइम टाइम कैंसिल हो जाएगा. सो वेलोसिटी रेशियो इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड. ठीक है. थर्ड, वर्क आउटपुट. आउटपुट मतलब लोड हो गया तो वर्क इज एफ इंटू एस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स में लोड आएगा, डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड है ना. आउटपुट है जिसको ओवरकम करना है हमको, लोड. नेक्स्ट आता है वर्क इनपुट. इनपुट मतलब हम वर्क कर रहे गाइस, तो एफर्ट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स में क्या आएगा, एफर्ट, जो हम व्हाट वी आर पुटिंग इनपुट, तो ई इंटू डी. ठीक है, तो वर्क आउटपुट, वर्क इनपुट. डन. नेक्स्ट फोर्थ. ठीक है, इसमें ना डेरिवेशन भी आता है गाइस. सिंपल है, इंपॉर्टेंट है ये. एफिशिएंसी, सिंबल ईटा, एफिशिएंसी. सिंपल, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट इंटू 100%, जो भी परसेंटेज होता है. ठीक है ना. परसेंटेज, एफिशिएंसी हम परसेंटेज में निकालते हैं गाइस. ठीक है, तो उस हिसाब से. ठीक है, तो वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, तो यूजुअली आई कैन ऑल्सो राइट एल इंटू डी एल अपॉन ई इंटू डी ई. अभी पढ़ा, राइट. सो नाउ गाइस, नाउ अंडरस्टैंड, L upon E is MA, DE upon DL is VR. So I can write this equation. ये तो डेरिवेशन ही होगा यूजुअली, तो हेल्प हो जाएगा तुमको. सो आई विल राइट एफिशिएंसी इज MA अपॉन VR. परसेंटेज रहेगा तो जो भी परसेंटेज इंटू 100% कर देना. बट ये एक्चुअल फॉर्मूला है. MA मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो. 2 मार्क का इसका डेरिवेशन, तो से आता ही है मोस्टली दे आस्क. फिफ्थ गाइस, तो ये बेसिक पार्ट हो गया. दिस इज बेसिक फॉर्मूलाज. ठीक है ना, ये यूज होता है. ठीक है. नेक्स्ट आई विल टेल यू अबाउट लीवर्स. ठीक है, तो लीवर्स कैसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, विच फॉर्मूला वी हैव टू यूज व्हेन. लीवर्स शॉर्टकट याद रखने का. 3 टाइप ऑफ लीवर है गाइस. अगेन, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3. क्लास 1 लीवर गाइस, बीच में फलक्रम आता है. क्लास 2 बीच में लोड आता है. क्लास 3 बीच में एफर्ट आता है. फ्ली, FLE, इन बिटवीन इफ देयर इज फलक्रम. क्लास 1 बीच में लोड है, क्लास 2 एफर्ट है, क्लास 3. ये याद रखना तुमको. फ्ली. ठीक है, ये याद रखना है. ठीक है. नेक्स्ट, क्लास 1 अगर मैं बात कर रहा हूं, सिंपल है. क्लास 1 एक्ट एज फोर्स मल्टीप्लायर, स्पीड मल्टीप्लायर, CID. CID change in direction, CID. Class 2 only act as force multiplier and class 3 act as speed multiplier. ये इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि जब सॉल्विंग करते हैं दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल में आता है. ठीक है. फॉर्मूला करें लीवर्स का.
Fifth formula, first mechanical advantage is effort arm upon load arm. What is effort arm upon load arm? ठीक है ना, effort arm easy है guys, देखो सिंपल है, लीवर, फल्क्रम, लोड, एफर्ट. तो लोड से फल्क्रम, लोड आर्म, एफर्ट से फल्क्रम, एफर्ट आर्म. ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना. बीच में फल्क्रम आया क्लास 1, बीच में लोड आया क्लास 2, एफर्ट आया क्लास 3. ठीक है. नेक्स्ट सिक्स्थ, तो एम इज एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म. इसमें भी एक ट्रिक बता देता हूं, ध्यान से सुनो, एग्जाम में काम आ जाएगा गाइस. ठीक है, चेक करो, देखो अब इफ एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म, एम ए विल बी ग्रेटर देन 1 फोर्स मल्टीप्लायर, है ना. एम ए ऑलवेज व्हेन इट इज ग्रेटर देन 1 फोर्स मल्टीप्लायर. एफर्ट आर्म लेस देन लोड आर्म, कम है, न्यूमरेट डिनोमिनेटर ज्यादा है, ऑब्वियसली मैकेनिकल एडवांटेज कम होगा, स्पीड मल्टीप्लायर. थर्ड, एफर्ट आर्म इक्वल टू लोड आर्म, दोनों इक्वल है, ऑब्वियसली एम में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछते हैं, यू शुड नो दिस गाइस. ठीक है, सो ये हो गया लीवर का. देयर इज वन मोर फॉर्मूला फॉर लीवर, आई विल टेल यू. ठीक है, नोट दिस, you have to note this whenever, see I am teaching you different chapters. If you are strong in first chapter, go to direct second chapter का work power energy का formula list. Third chapter if you are confused in machines का कैसे करना है, directly you can see this. ठीक है, I want you guys to basically make a list before an exam so that it becomes very easy. You will score very good marks by only learning formulas also. नेक्स्ट, लिवर का और एक फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला गाइस, सिक्स्थ. आई फाइंड दिस कि बच्चे बहुत, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मशीन, दैट इज आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी. आउटपुट गाइस सिंपल, एल इंटू डी एल, डी एल नहीं लेंगे, एनर्जी ना, तो डिस्टेंस को अभी लेंगे लोड इंटू लोड आर्म, दैट इज डिस्टेंस ही होगा जो भी. इनपुट में एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, ये फॉर्मूला आएगा. तो लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट. लिवर्स में यू हैव टू यूज दिस, ये फॉर्मूला आता है, डिराइव करके यू गेट दिस बेसिकली. ठीक है ना, तो ये मशीन्स का लिवर्स का हो गया. नेक्स्ट इज पुली. ठीक है, पुली का तो ना गाइस मैं एक टेबल बना के सिखाऊंगा. ठीक है, बहुत हेल्पफुल होगा. इट विल बिकम इजी फॉर यू गाइस. वो टेबल से ही तुम्हारा आधा फॉर्मूला लिस्ट इजी हो जाएगा, कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा. ठीक है ना, पुली के लिए. सो लेट मी मेक अ टेबल, 1 2 3 4 5 6 and 4. ओके, सेवेंथ फॉर्मूला गाइस, और पुली ओनली, डायरेक्टली रिफर दिस टेबल, इजी हो जाएगा. ठीक है, तो अब रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स 100% गाइस. दे विल टेल यू टू मेक 4 पुली, 5 पुली, 3 पुली. बाद में दे विल आस्क यू टू फाइंड एमए, फाइंड वीआर, फाइंड एफिशिएंसी, फाइंड लोड एफर्ट का रिलेशन, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड का रिलेशन. ये बहुत हेक्टिक हो जाता है, इतना टाइम नहीं रहता है हमारे पास. वी हैव ओनली 1 day टू रिवाइज ऑल 6 और 7 और 8 चैप्टर्स बिफोर एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम में. सो ये शॉर्टकट बहुत हेल्प करेगा. सी कैसे, लोड एंड एफर्ट का रिलेशन,
डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, MA, VR, एफिशिएंसी. ठीक है, दिस इज सिंगल फिक्स्ड पुली, सिंगल मूवेबल पुली, सिंगल नो इतना भी सिंगल नहीं, ब्लॉक एंड टैकल. ठीक है, ये 3 टाइप ऑफ पुली होते हैं, फिक्स्ड पुली, मूवेबल पुली, ब्लॉक एंड टैकल. गाइस सिंपल, ध्यान से सुनो. रिलेशन, इसमें लोड इज इक्वल टू एफर्ट. आइडियल, दिस इज अबाउट आइडियल केस, मैं आइडियल का बात कर रहा हूँ. ठीक है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट आइडियल पुली या आइडियल मशीन. चलो, ये जो भी पढ़ रहा है आइडियल के लिए. ठीक है, सिंगल मूवेबल पुली, L इज इक्वल टू 2E. ब्लॉक एंड टैकल, L इज इक्वल टू NE. N मतलब नंबर ऑफ पुलिस. 4 पुली है 4, 4. 5 पुली 5, 3 पुली 3. ठीक है, यूजुअली 3 पुली मिनिमम होता ही है, 3 से ज्यादा होता है, 3, 4, 5. नेक्स्ट, DL इज इक्वल टू DE. जितना लोड को 1 मीटर खींचू, एफर्ट को 1 मीटर, मैं एफर्ट अप्लाई करूँ 1 मीटर, लोड भी 1 मीटर ऊपर आएगा. सेम फॉर मूवेबल पुली, DL इज इक्वल टू DE अपॉन 2. मतलब मैं आई एम पुलिंग 10 मीटर, एफर्ट 10 मीटर लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट से 5 मीटर ऊपर आएगा. फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है यूजुअली. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का काम नहीं आता है वो. ठीक है ना, तो फोर्स मल्टीप्लायर का काम. नेक्स्ट, DL इज इक्वल टू DE अपॉन N. N नंबर ऑफ पुली, सेम 3 पुली 3, 5 पुली N will be 5, 4 पुली N will be 4. पुट कर देना, you will get displacement. ये न्यूमेरिकल्स में आता है. ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा है, ये आता ही है गाइस, दे विल आस्क यू दिस. ठीक है ना. नेक्स्ट, MA, सिंबल 1, मूवेबल का 2, इसका N, आई एम टॉकिंग अबाउट आइडियल. ठीक है, VR सेम 1, 2, N. VR नेवर चेंजेस, VR कभी चेंज नहीं होता है गाइस. दे विल आस्क यू VR किस पे डिपेंड है, यू विल टेल इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स. जैसे पुली में पूछते हैं नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, 4 पुली 4 स्ट्रिंग. MA कैन बी लेस देन VR. MA का वैल्यू 1 से कम हो सकता है, 2 से कम हो सकता है, N से कम हो सकता है. VR चेंज होगा नहीं, याद रखना. एफिशिएंसी गाइस, सेम आइडियल केस है तो 1 और 100%, सेम 1 और 100%, 1 और 100%. ठीक है, तो ये तुम्हारा टेबल है गाइस फॉर पुली. इजी होगा ना, ये पढ़ लो, न्यूमेरिकल्स इजी हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल गाइस फॉर फर्स्ट 3 चैप्टर्स. ठीक है, अगर पिंग मी इफ यू हैव, इफ आई मिस्ड एनीथिंग और एनीथिंग. आई थिंक आई हैव डन एवरीथिंग. सिंपल, जितना हो सकता है उतना थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखो, टाइम बचाना है हमको. ठीक है, लिखने के बाद इट विल टेक यू 5 या 10 मिनट्स. लिख लो एक बार, बिना देखे लिखो, देन ही काम आएगा. ठीक है ना, एंड ऑल द बेस्ट. आई कैन से that prepare for exams. I will put all next 3 chapters का also for unit 2 refraction through plane surface and. ठीक है, उसमें बहुत शॉर्टकट्स बताऊंगा, लेक्चर देखना गाइस. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच. पढ़ोगे तो बढ़ोगे, रिमेंबर. आधा घंटा